discussion around a range of issues, and we, during our discussions, reaffirmed that as two of the world's largest democracies, vibrant people-to-people contact between India and the United States, including an incredible Indian American population that contributes so much, that we have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. Last night, during a private dinner, we spent most of our time talking about the economy, and we agreed that in both countries, one of our primary goals is to improve education and job training so that our young people can compete in the global marketplace. And the Prime Minister shared with me his vision for lifting what is still too many Indians who are locked in poverty into a situation in which their lives can improve. We also today spent time talking about the international situation and security issues. We addressed challenges in the Middle East and violent extremism and fight against ISIL. We discussed what has now been a successful peaceful transition of power in Afghanistan and the need for all of us to work together to ensure stability there. We discussed issues of trade, issues making sure that maritime rules are observed, and we discussed how we can continue to work together on a whole host of issues from space exploration, scientific endeavor, to dealing with humanitarian crises like Ebola in West Africa. And throughout this conversation, I've been impressed with the Prime Minister's interest in not only addressing the needs of the poorest of the poor in India and revitalizing the economy there, but also his determination to make sure that India is serving as a major power that can help bring about peace and security to the entire world. So I want to wish him luck in what I'm sure will be a challenging but always interesting tenure as Prime Minister in India. I'm very grateful for the friendship between the United States and India, and I'm looking forward to building on this meeting so we can continue to promote progress in both countries and around the world. So thank you very much. प्रेसिडेंट ओबामा और मीडिया के सभी सदस्यों, सबसे पहले प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका आकर प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। President Obama, members of the media, first I want to thank President Obama for his invitation and his warm and generous hospitality. I am pleased to visit USA and meet President Obama at the start of my tenure. यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहां मिले। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। I am happy that we are meeting here just a few days after the Indian and the US missions reached Mars around the same time. So after the India-US summit on Mars, we are meeting here on Earth. This happy coincidence captures the potential of our relationship. इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना
स्वाभाविक है जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। This visit, especially my conversation with President Obama, has reinforced my conviction that India and the United States are natural global partners based on our shared values, interests and strengths in the digital age. We already have the foundation of a strong partnership. We now have to revive the momentum and ensure that we get the best out of it for our people and for the world. प्रेसिडेंट ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। President Xi spoke about many of our common economic priorities. I am confident that India will see rapid economic growth and transformation. We are focusing in India on not just on policy but also on processes to make it easy and productive to do business in India. I believe that India-US economic partnership will also grow rapidly in coming years. मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की सर्विस कंपनियां यूएस की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। I also sought President Obama's support for continued openness and ease of access for Indian service companies in the US market. हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We are serious about resolution of issues on both sides to enable civil nuclear energy cooperation to take off. It is important for India's energy security. WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से किया जा सकेगा। We had a candid discussion on Bali Ministerial of the WTO. India supports trade facilitation. However, I also expect that we are able to find a solution that takes care of our concern on food security. I believe that it should be possible to do that soon. क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। हमने तय किया है कि इस विषय पर आपसी संवाद व सहयोग हम बढ़ाएंगे। We have agreed to consult and cooperate closely on climate change issues, an area of strong priority for both sides. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही चुनौतियों को लेकर भी दोनों देशों के विचारों में समानता है। इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता शामिल है। अमेरिका हमारी लुक ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। There was great convergence on international developments that matter the most to our two countries, including peace and stability in Asia Pacific region. The United States is intrinsic to our Look East and Link West policies. दक्षिण एशिया सहित पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवाद की चुनौतियों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। We discussed existing terrorism challenges, including in South Asia, and the new threats of terrorism in West Asia and beyond. We agreed to intensify our counter-terrorism and intelligence cooperation. अफगानिस्तान के लोगों ने हिंसा और आतंकवाद पर विजय पाने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है। हम दोनों ने अफगानिस्तान को सहायता देते रहने की हमारी प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र में अधिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
The Afghan people have shown the will to prevail over violence and extremism. We discussed our two countries' continued commitment to assist Afghanistan and our own coordination in this area. अफ्रीका में इबोला क्राइसिस को लेकर दोनों पक्षों में गहरी चिंता है। भारत ने इस क्राइसिस से निपटने और अन्य सहायता के लिए $10 मिलियन की मदद देने का कमिटमेंट किया है। We have shared concern on the Ebola crisis in Africa, for which India has already made financial commitments of $12 million. हमारे साझा हितों को ध्यान में रखकर हम अपने सिक्योरिटी डायलॉग और डिफेंस रिलेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। मैं यूएस डिफेंस कंपनीज को विशेषकर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। Given our broad range of shared interests, we will also continue to deepen our security dialogue and defense relations. I want to especially welcome the U.S. defense company to participate in developing the Indian defense industry. पिछले 4 दिनों में मैंने भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के प्रति अमेरिका में अपार रुचि और उत्साह देखा। वह हमारे पारंपरिक संबंधों से जुड़ी उनकी आशाओं और उत्साह का प्रमाण है और यही हमारी शक्ति और प्रेरणा होगी। इन संबंधों को नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ एक नए स्तर पर हम ले जाने में सफल होंगे। During the last 4 days in the US, I have seen extraordinary interest and excitement about India and India-US partnership among the people of our two countries. We will draw strength and inspiration from it as we start a more purposeful course in our ongoing journey. मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। I look forward to receiving President Obama and his family in India at a convenient time. मैं प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिका की जनता को और विशेषकर अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी गर्मजोशी तथा भव्य सत्कार के लिए धन्यवाद देता हूं। I once again thank President Obama, people of the United States, and especially the Indian American community for their warm welcome and hospitality. और इंडिया के और अमेरिका के मीडिया का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। And also wish to thank the media from India and the US. Mr. President, thank you. Thank you. We have a lot of motorcades, so thank you for. Thank you. Thank you. Thank you. One more तो अभी आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जो उनकी बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस से बात की है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा विवेक आर्जू जी कि आमतौर पे हमें जो आदत है कि इस तरह की ब्रीफिंग जब होती है दोनों एक तरह के पोडियम लेक्टर्न शायद उन्हें बोलते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं और उसके बाद आकर ब्रीफ करते हैं। ये ओवल ऑफिस जो अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस है उसके अंदर ब्रीफिंग बड़ी इनफॉर्मल सी थी। हाँ, ये मुझे भी पहली बार मैंने देखा है क्योंकि होता ये है अक्सर कि मीटिंग ओवल ऑफिस में होती है और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मेहमान के साथ प्रेस का जो मीडिया का जो वहाँ व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग रूम है वहाँ आते हैं और वहाँ अपनी स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये पहली बार मैंने देखा है कि मीटिंग के बाद जो मीडिया से उनकी मुलाकात हुई है वो ओवल ऑफिस ही में हुई है। बिल्कुल, आइए सीधे चलते हैं। अभी सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए जो पूरा खास बातें वहां क्या निकल कर आई हैं ये बता रहे हैं। सुमित। आकाश, सबसे खास बात यही है जो बात अभी काजू साहब कह रहे थे उसमें मैं ये बताना चाहूंगा ओवल ऑफिस में जहां पर ये बातचीत होती है डेलीगेशन लेवल की या प्रेसिडेंट या अपने हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलते हैं वहां पे अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलग एक मीडिया ब्रीफिंग रूम है वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर स्टेटमेंट्स पढ़े जाते हैं। मैं भी शायद ये पहली बार देख रहा हूं कि उसी ओवल हाउस के अंदर कैमरे बुलाए गए और वहां पर बैठे बैठे जहां पर ये मीटिंग चल रही थी वहां ये जॉइंट डिक्लेरेशन दोनों लोगों ने पढ़ा। पहले राष्ट्रपति ओबामा ने पढ़ा और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ा।
एक तरीके से हम ये मान सकते हैं, इस जॉइंट डिक्लेरेशन को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है, इसके विश्लेषण के तौर पर एक नई बुनियाद, एक नई नींव रखने की कोशिश की है भारत अमेरिका के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भारत अमेरिका के संबंध कहीं कोई परेशानी में चल रहे हो, लेकिन अब ये नई ऊंचाइयां छुएं, नए लेवल पे जाएं, नेक्स्ट लेवल पे जाकर ट्रीटीज हो, समझौते हो और दोनों मुल्कों का विकास हो सके, दोनों मुल्कों के बाशिंदों को नौकरियां मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके और उनकी भलाई हो सके, उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। तभी इबोला के बारे में बातचीत हुई, तभी मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उस बारे में दोनों ने कंसर्न जताया। दोनों ने अपना जो भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी ट्रीटीज चल रही हैं, उनको और स्ट्रेंथन करने की बात की है और मजबूत करने की बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, साइंस हो गया, इन क्षेत्रों में जहां भारत और अमेरिका एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो अमेरिका के पास हैं, भारत के पास नहीं है, कुछ चीजें हिंदुस्तान के पास हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन पावर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, जो दिमागी ताकत है जो अमेरिका के पास नहीं है। उन चीजों में कॉपरेशन और बढ़े, उस बारे में ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। आज हम ये कह सकते हैं इस 5 दिन के दौरे के बाद और इस 10 दिन की बड़ी कवरेज के बाद कि ये दौरा भारत और अमेरिका के इतिहास में, भारत और अमेरिका के इतिहास के लिए एक नई परिभाषा लिखकर जा रहा है, नई सकारात्मक पॉजिटिव परिभाषा, जिसके बल पर बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी इस दोस्ती को एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं, जहां से सिर्फ दोनों का विन विन सिचुएशन है, जहां से सिर्फ दोनों मुल्क सिर्फ दोस्ती में हाथ डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और ये 21वीं सदी के लिए बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकशाही हैं जो आज एक साथ एक मंच पर खड़े होकर आपस में सहयोग करने की बात कर रही हैं। और शायद इसीलिए इस विजिट के आखिर में, अपनी ब्रीफिंग के आखिर में नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को इन्वाइट किया कि मैं चाहता हूं आप दोबारा हिंदुस्तान आइए। अमूमन एक राष्ट्रपति अपने एक टेन्योर में एक ही बार हिंदुस्तान आ पाया है। अगर बराक ओबामा इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और हिंदुस्तान आते हैं अगले 2 साल के बाद जब चुनाव होना है उसके पहले, तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि होगी। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की दोस्ती, उनकी गर्मजोशी का जो स्वागत सत्कार दिखा, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगले चुनावों के पहले, जो कि अमेरिका के लिए भी फायदेमंद हो सकता है और हिंदुस्तान के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आकाश। बिल्कुल सुमित, हमारे साथ ही रहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक सर्विसेज का सवाल है, तो भारत की सर्विस कंपनीज को अमेरिका एक्सेस दे, पुष्पेश जी, ये एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने अमेरिका के साथ उठाया है। देखिए, जितनी अपेक्षाएं आज सामने आई हैं, यदि उनमें से एक अंश भी साकार होता है तो इसमें फिर कोई विरोधाभास नहीं है। यदि अमेरिका और भारत के रिश्ते घनिष्ठ होते हैं, नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो जाहिर है कि जब अमेरिकी निर्माण का काम भारत में शुरू होता है तो भारत की जो सेवाओं वाला क्षेत्र है उसके साथ भी एक रिश्ता सहज होगा। अब तक अमेरिका को ये लगता है कि जो भारतीय सेवाओं वाला क्षेत्र है वो भारत की तरफ रोजगार ले जाता है और अमेरिकियों को लगता है, अमेरिकी मतदाता को लगता है, तो मुझे लगता नहीं कि पलक झपकती ये शिकायत अमेरिकी मतदाता की दूर हो जाएगी। मगर जब घनिष्ठता होगी, घनिष्ठता बढ़ेगी आर्थिक रिश्तों में, सामरिक रिश्तों में, तो ये अपने आप सुलझने वाला सवाल है। मुझे ऐसा नहीं लगता। और जब वो कहते हैं टूरिज्म की, तो क्या जरूरी है कि भारतीय सेवाओं के लिए, जिसे हम बॉडी शॉपिंग कहते हैं, वो आईटी सेक्टर का अमेरिका ही जाए? वो टूरिज्म में या मेडिकल में, मैं अब अनेक ऐसे मित्रों को जानता हूं जो अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय प्रवासी हैं, मगर अपना इलाज कराने के लिए दांत का हो या दिल का हो हिंदुस्तान आते हैं, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटिव टू गेट दैट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। जी, तो मुझे लगता है कि ये सारी सेवाएं तब भी सुलभ रहेंगी। विवेक जी, एक टोटल फील क्या था? कुल मिलाकर भारत और अमेरिका क्या ज्यादा नजदीक आते हुए लग रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, या एक जर्नी है, एक यात्रा है जो अभी शुरू हुई है? देखिए, ये जो आज मोदी जी का बयान था और प्रेसिडेंट ओबामा का बयान था, वो बिल्कुल जो अनुमान लगाया जा रहा था उसी के अनुसार था। कोई इसमें ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं दोनों नेताओं ने कही जिससे हम चकित हो जाएं। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ में, हाँ, एक ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात उठाई है डब्ल्यूटीओ की, और मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी इस बात पर बिल्कुल अड़े रहे, अपने स्टैंड पर कायम है, बिल्कुल स्टैंड पे कायम रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट चाहते हैं, ये हमारे हित में है, पूरी दुनिया के हित में है। इससे ये अनुमान है कि दुनिया का जो व्यापार है वो $1 ट्रिलियन से बढ़ेगा। पुष्पेश जी, एकदम साधारण शब्दों में समझाएंगे जो प्रधानमंत्री ने यहां पर स्टैंड लिया है फूड सिक्योरिटी को लेकर,
इसका आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? एक मैं और जी, इसमें अगर आप इजाजत दें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जैसे हमने पहले कहा था, जबकि हम अकेले पड़े थे, लेकिन हम उस पर बिल्कुल दृढ़ रहे कि हम ये ट्रेड फैसिलिटेशन अपनी फूड सिक्योरिटी की कीमत पे नहीं मानने को तैयार हैं। आज भी उन्होंने यही कहा, और ये कहा कि मुझे मोदी जी ने कहा कि हमें ये उम्मीद है कि ये मामला जल्दी ये सुलझ विदेश जाएगा। नीति का आयाम हुआ जो इस बातचीत का है, लेकिन पुष्पा जी थोड़ा समझाएं, आम आदमी के लिए इसका क्या अर्थ है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं काटजू साहब से बेहतर नहीं समझा सकता हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है नहीं, कि वो तो उन्होंने खाद्य फॉरेन सुरक्षा पॉलिसी का एंगल दिया। नहीं, देखिए, पॉलिसी का जो एंगल है वो एंगल कहिए या उसे आयाम कहिए, डायमेंशन कहिए, पैराडाइम कहिए। फूड सिक्योरिटी को कैसे रोक रहा था अमेरिका, भारत की फूड सिक्योरिटी? नहीं, जब तक ये है, फूड सिक्योरिटी को रोक नहीं रहा था। फूड सिक्योरिटी पर अमेरिका का अंकुश तब था जब PL-480 का आयात हो रहा था। वो युग दूसरा था, वो युग चला गया। भारत का डर क्या है? जो संयुक्त संपादकीय है उसमें हरित क्रांति का जिक्र किया गया है, और आज एक हरित क्रांति नहीं, दो हरित क्रांति संपन्न हो चुकी हैं। देखिए, जो भारत का डर था वो ये था कि अमेरिकी कृषक को यदि अनुदान मिलता है तो उसके उत्पाद से भारतीय बाजार जो पटेगा उससे भारतीय कृषक को नुकसान होगा। यानी कि अमेरिका तो अपने किसान को सब्सिडी दे दे, लेकिन भारत ना दे पाए तो उनका खाना सस्ता हो जाता है। बात इतनी सहज नहीं है। बात ये भी है कि यदि आपने भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया, रोजगार पैदा किया, तो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की एक तरह से उपेक्षा होगी। और यदि ट्रेड के लिए आपने सारा रास्ता खोल दिया तो आपकी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा अंततः कहीं ना कहीं शायद निरापद नहीं रहेगी। मगर जो काटजू साहब कह रहे थे वो असली बात ये है कि यदि विदेश नीति को आप खाद्य सुरक्षा में मोदी डटे रहते हैं तो विदेश नीति और आंतरिक नीति का अंतर बिल्कुल विलीन हो जाता है। कहीं ना कहीं जब आप ये कहते हैं कि अमेरिकी उद्योगपति, उद्यमी, व्यापारी भारत आएंगे, मगर वो उन क्षेत्रों में आएंगे जिससे आम आदमी की, हिंदुस्तान की जिंदगी बेहतर बनती है, खासकर गरीब आदमी की, तो रोजगार भी किन क्षेत्रों में पैदा होंगे, या रोजगार सब क्षेत्रों में पैदा होंगे, एक ही क्षेत्र में पैदा होंगे, दूसरे में खत्म होंगे, तो असंतुलन क्षेत्रीय विकास का नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो सेक्टोरल हो या जियोग्राफिकल हो, उस संतुलन को भी मोदी जी ने ध्यान में रखा है। तो जिस तरफ का उन्होंने जिक्र किया है वो बेसिक सर्विसेज, क्लीनलीनेस, क्लीन एनर्जी, वो सारी बातें ऐसी हैं जो आंतरिक राजनीति से सीधे सीधे जुड़ती हैं। ठीक है सुरेन जी, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, तो यहां जहां भारत अमेरिका के साथ जाना चाहता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहता है, वहीं साथ साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि IS, इस्लामिक स्टेट या ISIS जैसे कुछ लोग कहते हैं, उससे लड़ाई में भारत इतना भी शायद नहीं खींचना चाहेगा जितना कि अमेरिका भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है। यहां कुछ क्लैरिटी है? देखिए, मोदी जी ने जो काउंसिल फॉरेन अफेयर्स न्यूयॉर्क में जो स्टेटमेंट टेररिज्म में दिया है, उससे ज्यादा साफ गोई इसमें भी नहीं आ सकती। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि आप टेररिज्म को अच्छे टेररिज्म और खराब बुरे टेररिज्म को नहीं बांट सकते। ठीक है। और आप जो IS से लड़ना चाहते हैं उसके लिए सारा संसार आए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट डेंजर है। उन्होंने कहा है, जब वो कह रहे हैं सारे संसार को लाइए, इसका मतलब है कि चीन भी उसमें आना चाहिए, रूस भी उसमें आना चाहिए, ईरान भी उसमें आना चाहिए, तमाम और कंट्रीज आना चाहिए। तो भारत जो है इन प्रिंसिपल इसका डेंजर समझता है, ये बहुत बड़ा खतरा है, इसमें एकजुट करना। पर वो भी चाहते हैं केवल कुछ लोग इकट्ठा करके उसको आप कहें कि इंटरनेशनल वॉर हो रहा है ISIS में, ये पूरा कंप्लीट यूनिटी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं उनके जितने भी 30 या 35 40 देशों में हुआ है, ज्यादातर वो देश हैं जो उनका साथ हर समय देते रहे, गल्फ का टाइम भी दिया था, पर इसमें काफी देश हैं जिनको इसके बारे में शंका, उनके टर्की तक जो है काफी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। ओवल ऑफिस में जो अभी घोषणाएं हुई हैं, जिनको हम सब लाइव सुन रहे थे IBN 7 पर, इस वक्त वो जो हुई है व्हाइट हाउस में हुई है। आइए सीधे चलते हैं सुमित अवस्थी के पास जो व्हाइट हाउस में इस वक्त है। सुमित। आकाश, यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, काफी देर से बात करना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। और जब इन लोगों को हमारी रिपोर्टिंग के बारे में पता चला, खबर पता लगी कि मीटिंग सक्सेसफुल खत्म हो गई है, ये सब लोग यहाँ एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं और ये हमसे बात करना चाहते हैं। मोदी की और बराक ओबामा की बातचीत सफल रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में कोऑपरेशन की बात की है। आपको लगता है कि ये दोस्ती भारत और अमेरिका को नया आयाम दिला सकती है, नई सीढ़ी पर ले आ सकती है? बिल्कुल, ये एक फाउंडेशन उन्होंने बिल्ड किया है और ये आगे जाके इंडिया को और अमेरिका को, दोनों जगह के सिटीजन्स को काफी आगे ले जाएगी। आप क्या मानते हैं? Just FYI for your record, Honeywell already has a contract with Tata right now as we speak. So this is a guy of action. सिर्फ बातें नहीं करता है, तो आपको प्रूफ मिल जाता है, आप थोड़ा रिसर्च करो।
So he is the best Prime Minister India ever got and will ever have. So let's help him out. आपको भी ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स एंड पीआईओ कार्ड के लिए जो बताया उन्होंने जो न्यूयॉर्क में कि नाउ इट्स फॉर लाइक लाइफ लॉन्ग सो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर आवर किड्स सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आपको क्या लगता है? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है उनके लिए, उनमें कॉन्फिडेंस, इसलिए तो मैंने 6 महीना भारत में रहकर उनके लिए कैंपेन किया साउथ इंडिया में, और जो कांग्रेस है उनको भी मनाया कि भारत के लिए काम करने आए, तो सबने यही किया और अच्छा हुआ, ये रिजल्ट आया। आप लोगों को लगता है कि विवेक आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों को लगता है कि जो डिफेंस के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में जो कोऑपरेशन की बात हुई है, 10 साल तक और अपने एग्रीमेंट को बढ़ाने की बात हुई है, उसका फायदा आम हिंदुस्तानी को मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिकॉज यू नो अ ग्रेट लीडर कैन ओनली टेक अ ग्रेट country like India forward, you know. So it's very important first we find a great leader. Now since we have found a great leader, now we stick to the principles that we have. The great leader is specifying for us. That's what he said. Do small things. Look for patriotism in the things that you are doing in your daily life. Do और it इस at the वक्त ये best. लाइव So I think विजुअल्स आप देख रहे हैं, सुमित वहां व्हाइट हाउस में है और उसी के एक दूसरे हिस्से में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस वक्त आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। ओवल ऑफिस में जो अमेरिका के राष्ट्रपति का दफ्तर होता है, उसी ऑफिस से जो एक ओवल शेप में है, इसीलिए उसका नाम ओवल ऑफिस है। और अब ये मार्टिन लूथर किंग का मेमोरियल है विवेक जी? मुझे तो यही लग रहा है, और उसमें वहां पे क्या अमेरिकी राष्ट्रपति साथ हैं, ये मुझे अभी साफ दिख नहीं रहा है। उनके जी बिल्कुल, दोनों साथ खड़े हैं और ये वॉशिंगटन डीसी से तस्वीरें हैं। क्या लिंकन मेमोरियल? नहीं, लिंकन मेमोरियल नहीं। अब मुझे नहीं, लेकिन ये भी एक जेस्चर है बहुत बड़ा। दोनों का साथ होना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल साथ होना। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी और नेता के साथ, अपने किसी मेहमान के साथ ऐसे मेमोरियल में गए हों। मोदी जी के लिए सब यही कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा जेस्चर देखकर ये लग रहा है कि ये वही मार्टिन लूथर किंग, ये मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल ही लगता है। मेमोरियल है और ये लाइव विजुअल्स वहीं से आ रहे थे। और ये थोड़े पहले के विजुअल्स हैं जो ओवल ऑफिस में विजुअल्स थे। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा विवेक जी, आप थोड़े अचंभित भी हैं और आपको खुशी भी है कि मार्टिन लूथर किंग का जो मेमोरियल है वहां पर भारत के प्रधानमंत्री का जाना तय था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके साथ गए वहां। हाँ, ये एक जरा नई बात है और मुझे लगता है कि ओबामा जी की तरफ से एक जेस्चर है प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि अमूमन ओबामा जी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर हमारे वहां कोई स्टेट विजिट होती है तो उस विजिट में जो विदेशी मेहमान आता है वो राजघाट जाता है, लेकिन राजघाट में विवेक जी जो आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखिए बराक ओबामा आज जितने भी चित्र हैं उनमें कहीं पर भी इतने एनिमेटेड, इतने खुश और इतने दिल से अपनी बातें कह रहे, नहीं लग रहा। लेवल ऑफ कंफर्ट जो दोनों के बीच में नजर आ रहा है। सुरेंद्र जी, ये जो है मोदी जी का जादू है। जब जापान में गए तब उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस जब बुद्धिस्ट टेम्पल में साथ साथ गए थे, तो जो है चीन में जो उनके प्रेसिडेंट वहां पे जो है बिल्कुल, तो उनका एक रेपो इंस्टेंट करने का काफी कुछ उनको इसकी टैलेंट कहिए या उसकी कुछ का उनका नेचुरल टैलेंट है उनका। पुष्पेश जी, ये बहुत दिलचस्प है कि दोनों ने मिलकर जो आर्टिकल लिखा है, जो जॉइंट एडिटोरियल लिखा है, और उसके अंदर जो चीजें कही गई हैं, इस वक्त दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, जितने रिलैक्स नजर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक काल में हिंदुइज्म को दुनिया तक पहुंचाया, ये इस आर्टिकल में दोनों ने मिलकर लिखा है। और आगे ये भी कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने जिस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो किया, और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के लिए जो किया, और गांधी जी खुद हेनरी डेविड थोरो से बहुत कुछ सीखने के बाद बहुत सारे विचार सामने लाए थे। ये सारी बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ मूर्त रूप में नजर आ रही है। हाँ, मगर जो आप कह रहे हैं, जो आपने पढ़ा लिखा वो तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आंखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। तो ये तो आंखों के सामने जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रेम वाला तत्व जो है वो पोथी के ज्ञान से ज्यादा लग रहा है। और जैसा काटजू साहब फरमा रहे थे कि ये तो पहले कभी देखा नहीं गया था, ऐसा न देखा और ऐसा अब तक जो नाच गाना सुना वो सुना भी नहीं था।
तो कुल मिलाकर जो नमूना हमारे सामने आ रहा है वो एक नई पहल का निश्चित रूप से है जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आप लाइव विजुअल्स देख रहे थे वो मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल का है। हम सब वो गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। तो वो एक पूरा बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने ये तय किया अमेरिका के अंदर कि जो अफ्रीका से आए हुए लोग हैं अमेरिका के अंदर वो भी गोरों के बराबर है। मार्टिन लूथर किंग का वो जो मूवमेंट उसका अमूर्त रूप आज बराक ओबामा है और शायद इसीलिए उनके दिल के बेहद करीब है मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग ने बहुत कुछ पुष्पेश जी गांधी जी से सीखा था, तो ये दिलो दिमाग का मिलना भी है। और गांधी जी ने अपनी जीवनी में स्वीकार किया है जो आज बात कही गई है संपादकीय में कि थोरों का कितना प्रभाव उनके ऊपर रहा था। सिविल डिसोबीडियंस का आर्टिकल 1849 उन्होंने लिखा था। इतने सालों बाद गांधी को प्रेरणा मिली तो गांधी मानते हैं उनको। तो विवेक जी, मैं यही लगातार देख रहा था कल रात के डिनर की अगर आप फोटोज देखें, उसके बाद आज जब बैठक चल रही थी उसके फोटोज देखें, तो एक फॉर्मेलिटी है जिस तरह से बैठे हैं राष्ट्रपति ओबामा। और अभी भी देखिए जिस तरह से विजुअल सामने आपको नजर आ रहा है, तो पूरा एक जो ओकेजन है बहुत फॉर्मल है, ओवल ऑफिस है। लेकिन जैसे ही मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पे पहुंचते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल जा रही है। देखिए वो सेटिंग अलग है, ये फॉर्मल सेटिंग है। यहाँ पर औपचारिक नहीं हो रहे, हाँ औपचारिक बातचीत हो रही है। और ये देखिए इनफॉर्मल सेटिंग। लेकिन ये है ये अलग सेटिंग है। और इसमें मार्टिन लूथर किंग तो प्रेसिडेंट ओबामा के हीरो थे जी, और उसके जरिए प्रेसिडेंट ओबामा का लिंक है भारत में, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग की जितनी भी फिलॉसफी थी, जो इनका एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो उन्होंने चलाया, वो गांधी जी से प्रेरणा मिली थी उनको जी। तो यहाँ पर एक ये एक जो चित्र है, वो कहते हैं कि क्या पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो ये बिल्कुल ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बहुत बड़ा जेस्चर किया प्रधानमंत्री जी के लिए और उनके जरिए भारत के लिए। पुष्पेश जी, एक बहुत दिलचस्प बात सीमा सिरोही ट्वीट कर रही हैं कि दोनों को इस समय थोड़ा ये भी याद करना चाहिए कि जो स्टैचू है ये मेड इन चाइना है। सीमा जी को पढ़ाई की स्मृति मुझे बाकी है अभी जेएनयू की, मगर मुझे लगता है कि सीमा जी इस बात कॉन्ट्रेरियन रोल अदा कर रही हैं कि कल भी उनके सोर्स उन्हें कुछ और बता रहे थे और आज भी इस बात उनको चीन याद आ रहा है, तो देर आए दुरुस्त आए। देखिए उसके अंदर लेकिन हमारे कुछ दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो उनके लिए विदेश नीति आप अच्छे से समझते हैं और लोगों और बड़े नेताओं के बीच की केमिस्ट्री को समझते हैं विवेक जी, इसलिए एक बार उनके लिए फिर बताएं कि ये जो विजुअल स्क्रीन पर है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर किया है कि वो व्हाइट हाउस से निकले हैं और एक मोदी जी के साथ एक ऐसे व्यक्ति के मेमोरियल में गए हैं जिन्होंने अमेरिकी इतिहास को परिवर्तित कर दिया और जो एक प्रेरणा के स्रोत हैं प्रेसिडेंट ओबामा के लिए और वहाँ के जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं समुदाय है और माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। और अब दूसरी चीज ये है कि ये एक मेरी यादगार में मेरे अपने राजनयिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री एक मेहमान के साथ एक मेमोरियल में जाए। ये तो सुना है कि वो भोज में एम्बेसी में भोज में कभी कभी आते हैं, ये अलग बात, लेकिन ये पहली बार है। और मैं आपको एक याद दिलाऊं आपको, जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि जब पहली बार इंदिरा जी गई थी जी वॉशिंगटन, तो फिर जो हमारे एम्बेसडर ने प्रेसिडेंट जॉनसन होते थे राष्ट्रपति, और जो हमारे वहाँ राजदूत थे उन्होंने जो भोज दिया था या उन्होंने जो रिसेप्शन किया था, नहीं बीके नेहरू साहब थे, जब उन्होंने रिसेप्शन दिया था तो उसमें लिंडन जॉनसन आए थे। और फिर ये सुनते हैं कि लिंडन जॉनसन फिर वहाँ रुके रहे, बातचीत चलती रही और खाने का वक्त हो गया तो एम्बेसडर साहब ने शायद जाके उनके जो सहयोगी थे
प्रेसिडेंट जॉनसन साहब के, उनसे पूछा कि क्या वो खाने के लिए भी रुकेंगे। अब मुझे ये याद नहीं पड़ता है कि क्या वो रुके थे फिर खाना खाया था, लेकिन वो एक किस्म से ये एक पर्सनल जेस्चर किया गया है। ये मोदी जी के लिए ओबामा ने, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है किया। एक चीज आपसे भी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के साथ अगर आप विस्तार से समझा पाए, ये जो मार्टिन लूथर किंग का यहां पर मेमोरियल है, इसके ऊपर जो शब्द लिखे हैं वो अंग्रेजी में लिखा है, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। देखिए, ये मतलब कुछ वाक्य अमेरिकी इतिहास में इस तरह के हैं जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका अगर इतिहास आप तलाशें तो वो सीधे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से यहाँ तक आते हैं। और वो जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसमें वन नेशन अंडर गॉड वाली बात भी है। और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम जनतांत्रिक हैं, वो जनतांत्रिक हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो भी आचरण में धर्मनिरपेक्ष हैं, मगर अपने सार्वजनिक जीवन में धर्म को स्वीकार करते हैं। अमेरिका के कई राज्यों में जो कानून है, वो चाहे डिवोर्स का हो, चाहे बर्थ कंट्रोल का हो, चाहे स्टेम सेल ट्रीटमेंट का हो, चाहे क्रिएटिविटी क्रिएशन का हो, इन सारी बातों में बाइबल की आस्था रहती है। तो अब ये जो वाक्य आपने पूछा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसमें अनुकूल सीधे सीधे बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट की है, जब उनको ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि कोई न कोई उनको निकाल कर निराशा के गर्त से ले जाएगा एक समतल मैदान में, जहां से वो शिखर तक पहुंच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं, वो जब मोदी ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने उपनिषदों के सूत्रवाक्य कहे, उन्होंने वैदिक ऋचाओं का उल्लेख किया, उन्होंने नेपाल में किया, उन्होंने यहाँ किया, जो वसुधैव कुटुंबकम हो या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वाली बात हो, तो कहीं न कहीं उसी तरह के शब्द ये उस संस्कार के हैं। और अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका गणराज्य की स्थापना उस आंदोलन के साथ हुई थी जो धार्मिक कट्टरता से रोमन कैथोलिक चर्च के मुक्त होने के लिए मेफ्लावर जहाज में सवार हो पिलग्रिम लोग पहुंचे थे और अमेरिका पहुंचे थे। और उसके बाद यहाँ एक उपनिवेशवाद विरोधी गणराज्य अंततः स्थापित हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ धर्म और क्रांतिकारी और परिवर्तनकामी बदलाव वाली राजनीति का एक अद्भुत समन्वय अमेरिका के इतिहास में 200-250 वर्ष के 300 वर्ष के हमें देखने को मिलता है। और मार्टिन लूथर किंग उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो जो शब्द आप बतला रहे हैं, और दूसरी बात मैं कहूँ कि जिसका जिक्र पहले सीमा सिरोही के ट्वीट के रूप में आप कर रहे थे, आज की तारीख में न अमेरिका को चीन से बैर है, न भारत को चीन से बैर है। सिर्फ दोनों की कामना ये है कि कोई भी चीन को अपने ऊपर हावी न होने दे, उसको संतुलित करे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा व्यापार चीन के प्रति असंतुलित है, अमेरिका का भी है। सुरेंद्र जी, आपके पास भी आता हूं। अब ये दो तस्वीरों का फर्क मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ओवल ऑफिस के अंदर, जो कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, उसके प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी आज माने जाते हैं, उनका दफ्तर, सीट ऑफ पावर, वहां पे प्रधानमंत्री बैठे हैं और साथ में उनके अमेरिका के राष्ट्रपति भी बैठे हैं। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज, उसमें फॉर्मेलिटी है, वो ओकेजन, वो समय भी ऐसा है जो कि बहुत ही फॉर्मल ओकेजन है। और दूसरा, जिसके बारे में अभी हमारे तीनों मेहमान ये कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो दूसरा चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, यहां दिल से दिल की बात हो रही है, दिमाग से दिमाग की बात हो रही है। यहां पर दो बड़े नेता एक दूसरे को किस लेवल तक समझ चुके हैं, ये नजर आ रहा है। मार्टिन लूथर किंग, जो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, उनका ये मेमोरियल है। और स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी का वो कई बार नाम ले चुके हैं जब वो अमेरिका में थे। और मार्टिन लूथर किंग और गांधी दोनों के बारे में कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी बात कर चुके हैं। इस वक्त मेमोरियल पर दोनों का साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक सिंबॉलिज्म है इस बात का। और आमतौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह से निकलकर किसी और राष्ट्राध्यक्ष के साथ नहीं जाते। नॉर्मली सुरेंद्र जी, आप अमेरिका में रह चुके हैं, नॉर्मली भारत के प्रधानमंत्री या कोई और प्रधानमंत्री किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष मेमोरियल पे जा रहे हैं तो वो एक रस्म अदायगी होती है, यहां पर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, मोदी जी में कुछ इस तरह की नैसर्गिक क्षमता है कि वो विश्व के तमाम नेताओं के साथ बड़ी आसानी से इस तरह की केमिस्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप देखिए, 1 महीने के अंदर आप जापान जाते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर झप्पी मार रहे हैं। आप अहमदाबाद जाते हैं तो उनके साथ बैठ के झूला झूल रहे हैं। आप यहाँ आप देखिए, 3 विश्व के, एक जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, एक जो आने वाली सुपर पावर कही जाती है, एक तीसरे नंबर की है।
तीनों लीडर के साथ हमारे प्रधानमंत्री 4 महीने के अंदर इस तरह के एक पर्सनल रेपो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के इन देशों के साथ संबंध बनने के आसार और अच्छे हो जाते हैं। पर्सनल केमिस्ट्री सब कुछ नहीं होती, पर इसका वो असर पड़ता है। पर्सनल रेपो, पर्सनैलिटी का काफी असर पड़ता है। वैसे नेशनल इंटरेस्ट सभी अपना अपना चाहते हैं, पर मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जिस तरह से केवल अभी तक आप करें इंडियन अमेरिकन मेडिसन स्क्वायर में आए, इस जोशो खरोश से उनका स्वागत किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसी तरह से आप देखते जा रहे हैं, ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। प्रेसिडेंट ओबामा उनके साथ खड़े हुए मार्टिन लूथर के यहाँ, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट यूएसए ने कोई डिनर किया हो, वहां पर उनका चीफ गेस्ट जिसके लिए डिनर हो रहा है वहां बैठ के वो गर्म पानी पी रहा हो, पूरा डिनर नहीं किया हो। तो मोदी जी के लिए तो बहुत सी नई चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का सिलसिला आगे चलता रहे, कि ऐसे लीडर्स के साथ इनके इस तरह के पर्सनल रेपो बनते जाएं, और इससे हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट वो भी सर्व होते जाएं, तो उसका स्वागत करना चाहिए और इसका पूरा भरपूर हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। पुष्पेश जी, ये यात्रा अब लगभग समाप्त होने को है। जो अहम बातें सारी होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और सुबह के 4:15 बजे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी से रवाना हो जाएंगे फ्रैंकफर्ट के लिए। कुल मिलाकर क्या आप पिछले 5 दिनों को देखते हैं तो आपको लगता है कि काफी सारी चीजों ने आपको अचंभित किया है जो आपने यात्रा के पहले नहीं सोची थी? नहीं, क्षमा कीजिएगा, कई चीज़ों ने मुझे आश्चर्यचकित किया जरूर है, मगर विस्मित या स्तंभित नहीं किया है। मुझे लगता है कि मोदी की जो शैली है वो उन्हीं के शब्दों को अगर उधार लें तो वो चरैवेती वाली है। उनका मानना है कि चरम वे वधुमिंदति, उनकी यात्रा रुकने वाली नहीं है। तो ये जो यात्रा है वो आज अमेरिका यात्रा का समापन भले ही हो, मगर जो भारतीय विदेश नीति को नई दिशा और गति देने का प्रयास है वो यात्रा अनवरत जारी रहेगी। और मोदी की मुद्रा अपने चुनाव अभियान से आज तक चरैवेती वाली ही है, तो वो रफ्तार मेरे ख्याल में जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी। ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है शायद यहीं पर बुलेटिन को खत्म करने का। इन 2 चित्रों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने जो सामने नजर आ रहा था उसके पीछे के अर्थ हमको यहां समझाए और सारी प्रधानमंत्री की अमेरिका ट्रिप में हमारे साथ थे। और पुष्पेश जी ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से इसे खत्म किया है बात को यहां पर, कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो आगे अब चरैवेती का जो सिद्धांत है उस पर आगे बढ़ने वाला है। और ये एक शायद हम मुड़कर जब लंबे समय बाद वापस देखेंगे तो ये जो विजुअल आपके सामने है ये बहुत देर तक भारत और अमेरिका के लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहेगा और लंबे समय तक इसके दूरगामी परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, IBN 7 में लौटते हैं और खबरों के साथ।